Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Mansi God, and in today's video we will be covering second part of polynomial chapter. So in the last video I've explained you what are polynomials, what are the different types of polynomials, what is zero of a polynomial, degree of a polynomial and everything else. Okay, so I will also share the link of that video in the description box. Now let's start this class. Today we will be doing all the examples based on the topics that we have covered in the last class. So let's start now. Let's look at this first example. So here I am covering all the examples and questions of NCERT. Later we will be covering questions on from R.D. Sharma as well. So here is the first question that says, look at the graph in figure 2.9 given below. Each is the graph of polynomial y is equals to px, and where px is a polynomial, for each of the graph find the number of zeros of polynomial. Okay, now how do we find out the zeros of a polynomial from the graph? So it's very easy actually. Wherever your graph cuts the x-axis, that gives you the zero of a polynomial. For example, if you look at the first diagram, for instance, here this graph is cutting the x-axis at only one point. That means this is our one of the zero. Here this polynomial has only one zero. It should only cut the x-axis and not the y-axis. हमेशा जितनी भी बार आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा आपके उतने ही ज़ीरोज़ होंगे. So in this case we have only one zero. In this case, as the graph is cutting x-axis at two different points, that means this has two zeros. ये जो polynomial है इसके two zeros होंगे. Now the third one is 1 2 3. Third one. Now many of you have doubt that it is cutting y-axis also. So shall we count that point also? So no. जहाँ पर भी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वही हमारा ज़ीरो होता है, वही हमारे ज़ीरोज़ होते हैं. उसके अलावा कोई भी ज़ीरो नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? अगर आपके दिमाग में ये डाउट आता है, इट्स बिकॉज योर पॉलिनॉमियल इज़ इन द वेरिएबल एक्स. जो आपका पॉलिनॉमियल है वो पूरी एक्स की एक्स पर ही बना हुआ है, राइट. पूरी इक्वेशन में आपको एक्स ही एक्स वेरिएबल दिख रहे हैं, तो हम वहाँ पर उस पॉलिनॉमियल को कैसे कंसिडर करते हैं? वाई एज वाई एक्सिस, एक्स एज एक्स एक्सिस. तो जब हम x की वैल्यू कुछ ऐसा नंबर रखेंगे जिसकी वजह से हमारा पूरा पॉलिनॉमियल ज़ीरो बन जाए, तो वो x की वैल्यू होगी, राइट. तो इसलिए हम x एक्सिस पे वो सारे नंबर ढूंढते हैं जहाँ पर हमारा ग्राफ क्या हो, ज़ीरो हो. तो जहाँ पर भी वो x को, जहाँ पर भी आपका x पर क्रॉस कर रहा है ग्राफ, दैट विल बी योर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. नाउ इन दिस केस इट इज़ 1, in this case 1, in this case 1 2 3 and 4. Okay, I hope you guys are clear. Let's move on to the next part, which is example number. It's exercise 2.1 first part. So it's mixed of questions and examples from the NCERT. This is same as the previous question. Here also we need to find out the number of zeros. I'll give you some time. Take your time, 2 minutes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes to find out the zero of these polynomials which are there on the screen. So there are 6 questions. You can write your answers in the chat box. I'm giving you some time. I will check later on, or you can check yourself. I'm going to give you answer anyways. So all right, I hope you guys are done now. It's very easy. इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. यहाँ पर देखो, ये कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है. इट हैज़ ज़ीरो ज़ीरोज़, कोई भी ज़ीरो नहीं है इसका. व्हाट अबाउट दिस? एक ही जगह पे कट कर रहा है. सो 1 0 1 2 3, ये 3 हो गया. 1 2 2 हो गया. 1 2 3 4 4 हो गया. 1 2 3 3 हो गया. ओके, आई होप यू गाइज आर क्लियर. बहुत ही ईजी है ज़ीरो फाइंड करना अगर आपको ग्राफ दिया गया हो तो. नाउ दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2 विच सेज find the zeros of a quadratic polynomial this and verify the relationship between zeros and coefficient. So what is the relationship between zeros and coefficient? I'll tell you. Number one thing, if you have any quadratic equation, the general form of writing that quadratic equation is ax square plus bx plus c. If it is an equation, it is equal to 0. अगर कोई expression होता है तो उसमें equal नहीं लगता. So if it is an expression, it will be simply ax square plus bx plus c. Now, I hope you guys know that a and b are coefficient and c is a constant. Okay.
if we have to find the zero of this polynomial, I will equate it to 0. So x square plus 7x plus 10 is equals to 0. अच्छा, इसको करने के काफ़ी सारे तरीके हैं. आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा या 9th में पढ़ा होगा. एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है विच इज़ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. एक तो ये है. दूसरा क्या है? दूसरा मिडल टर्म स्प्लिट है कि आप मिडल टर्म को स्प्लिट करते हो. देयर इज़ वन मोर वे विच इज़ ईजियर. बहुत ही ईजी वे होता है. जब भी आपका कोई कोएफिशिएंट ना हो ना एक्स स्क्वायर का, when you have no coefficient of x square, in that case you find the factors of 10. ऐसे दो फैक्टर आपको फाइंड करने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 हो. सो इट इज़ वेरी इजी. 10 का जो होता है, 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 and 5. हाँ, सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा 2 5s are 10. नाउ 2 and 5 आर द फैक्टर्स एंड व्हेन यू ऐड दीज फैक्टर्स यू गेट 7. अगर ये पूरा पॉलिनोमियल प्लस में है then your factors of this expression would be x plus 2, x minus x plus 5. दोनों अगर प्लस में, अगर पूरा आपका एक्सप्रेशन प्लस में है तो ये आपके जो हैं फैक्टर्स हो जाएंगे पॉलिनोमियल के x plus 2, x plus 5. इन फर्दर क्लासेज आई विल टेल यू सम मोर शॉर्ट ट्रिक्स कि अगर कहीं नेगेटिव साइन भी होता है तो आप कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं उस पॉलिनोमियल को. फॉर नाउ वी गॉट x वैल्यू एज -2 फ्रॉम हियर एंड -5 फ्रॉम हियर. अब हमें x की वैल्यू मिल गई है. दीज आर अवर जीरोज because by putting the value x as -2 and -5 we our entire polynomial is becoming 0. So x value is -2 and x value is -5. I hope you guys are clear. Take a screenshot of this and I will erase it then. Please take a screenshot. So this is done now. All right. Now the question also says find the relationship between zeros and the coefficient. What is the relation? How do we find it out? अब रिलेशन कैसे निकाला जाता है? तो देखो, मैंने आपको भी एक इक्वेशन बताई थी. द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, करेक्ट, इक्वल टू 0. अब अगर आप इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो, इधर भी a से डिवाइड कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर करोगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0. तो ये जो आपका टर्म आई है, ये सेकंड नंबर वाली जो कोएफिशिएंट है b बाई a, ये एक्चुअली क्या होता है? सम ऑफ जीरोस. आप माइनस और लगा दो, इसका साइन चेंज कर देते हो. अगर ये प्लस है तो माइनस कर दोगे, माइनस है तो प्लस कर दोगे. ये होता है आपका सम ऑफ जीरोस. ठीक है. और ये जो टर्म है आपकी, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अच्छा, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके पॉलिनोमियल में तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा. ठीक है. यानी ये जो है प्लस सी बाई, जो वैल्यू सी की है वो एज इट इज़ आ जाएगी. मतलब साइन चेंज नहीं होगा. प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा. अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो यहाँ पर जो साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा. आई मीन टू से कि वो चेंज हो जाएगा साइन. तो इसका क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट. क्या होता है? सम ऑफ जीरोस तो हमेशा माइनस ऑफ बी बाई ए रहता है, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड करता है. अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ऑड है तो ये जो है वो का वही रहता है. सी बाई ए है, सी बाई ए रहेगा. प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा. बट इफ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, ऑड में तो सेम रहेगा, अगर इवन हो जाती है तो साइन चेंज हो जाता है. कैसे होता है? कुछ एग्जाम्पल हम इसके भी देखते हैं. पहले मैं आपको ये बता देती हूँ. सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो समझ में आया? यहाँ पर देखो, अब हमें इनका रिलेशन बताना है. अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये एक्सप्रेशन. यहाँ पर एनीवेज हमारा कुछ a है ही नहीं, कोई वैल्यू a की है ही नहीं. ठीक है, a की कोई वैल्यू है ही नहीं. a हमारा 1 है यहाँ पर. तो अगर आप डिवाइड भी करोगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा. ऐसे लिख देते हैं, चलो 7/1 लिख देते हैं अगर आपको नहीं समझ में आता है तो. प्लस 10/1 इक्वल टू 0. 1 से डिवाइड कर दिया. ठीक है. नाउ सम ऑफ जीरोज विल बी माइनस ऑफ b बाई ए, यानी क्या हो जाएगा? -7/a हो जाएगा. यहाँ पर ऐड करके देख लो इन दोनों को कि क्या आपके जीरोज का सम एक्चुअल में -7 है. येस इट इज़ -7. ऐसे ही प्रोडक्ट करके देख लो. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, -2 टाइम्स -5 वुड बी 10.
10 हो जाएगा। इधर देख लो, यहाँ पर भी हमें c बाई ए 10 ही मिल रहा है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and sum of zeros, product of zeros and the coefficient. Let's try this question. ये भी एक हमारा quadratic polynomial ही है. Now there is no middle term in it. इसके अंदर कोई middle term ही नहीं है. क्या करें तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है. एक्स स्क्वायर प्लस 0x हो जाएगा. क्या दिक्कत है इसमें? 0x हो जाएगा. -3 इक्वल टू 0. ठीक है. अगर आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो ये एक आइडेंटिटी है, आपने पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी. सो it will change to x plus √3 x minus √3. करेक्ट. x would be, यहाँ से x हो जाएगा माइनस √3, यहाँ से x हो जाएगा प्लस √3. सो दीज आर योर ज़ीरोज़. चलो ऐड करके देख लेते हैं. सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस √3 प्लस √3 वुड बी 0. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट कर देते हैं दोनों का. प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? माइनस √3 टाइम्स √3 इज़ -3. प्रोडक्ट हो गया. अब यहाँ से हम रिलेशन उसका भी चेक कर लेते हैं. यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. सो 0 लिखो चाहे -0 लिखो, कोई डिफरेंस आएगा? अल्टीमेटली इट इज़ 0 ओनली. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वुड बी माइनस, प्रोडक्ट जो होता है जो हमारा सेम होता है c बाय वो ही रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, टर्म्स हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है यहाँ पर, राइट. सो दिस विल बी -3 एज इट इज़ आ जाएगा. देखो -3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. -3 बाय 1 लिखो चाहे -3 लिखो, एक ही बात है. सो दैट्स हाउ वी वेरीफाई सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 4. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and product of whose zeros are -3 and 2. Now this question is very interesting. Sum of zeros is given to us, product of zeros is given to us. Now we know if we write any quadratic equation, it is written in the form of x square plus b by ax plus c by a equal to 0, correct? Where if you change the sign of it, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस बी बाई ए जो होता है वो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है. तो हमें ये b बाई ए एंड c बाई ए इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस. हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा इक्वेशन बनाना. कैसे हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो -3 दिया हुआ है. वो -3 कब होगा? जब ये वैल्यू हमारी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, करेक्ट. सो दिस इज़ +3x सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इज़ 2. सो यहाँ से 2 आ गया इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार. b बाई ए की वैल्यू क्या थी? -3 थी, राइट. सम ऑफ ज़ीरोज़ इज -b बाई ए. -b बाई ए इज ऑलरेडी गिवन टू अस विच इज़ -3. तो b बाई ए वहाँ से 3 हो गया. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो c बाई ए वॉज ऑल्सो गिवन 2, तो वहाँ से 2 हो गया. और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स वेरी ईजी. ऐसे ही कर सकते हैं हम. Please try more questions from other books. If you study from R.S. Agrawal or R.D. Sharma, please try to solve more question. And if you face doubt from these topics, definitely you can put your doubts in the chat box in the comment section. I will take your doubts from there and I will definitely make more videos on it. Let's see question number 5, example number 5. This example you try. I will give you a hint here. Verify that 3, -1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial. How to verify? ये सारी जो वैल्यूज़ हैं आप इनको x की जगह रख के देख लो. अगर ऐसी x की जगह पर रखने पर ये 0 हो जाता है तो वो 0 हो गया. 0 है, वो 0 है, इस zeros of a polynomial है. अब मैं यहाँ पर आपको 3 रख के बता देती हूँ. अगर आप x की जगह पे 3 रख देते हैं हर जगह, लेट्स सी कि क्या ये हमारा पॉलिनोमियल हमें 0 वैल्यू देगा. अगर देता है तो 3 विल बी अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. हर जगह x की जगह मैं 3 रख रही हूँ. सो दिस विल बी 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3. 81 माइनस 81 इक्वल टू 0. देखो 0 हो गया. सो इफ़ योर रिजल्ट इज़ 0, दैट मीन्स दिस नंबर 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. ऐसे ही प्लीज़ चेक फॉर अदर्स. नाउ टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, सम ऑफ ज़ीरोज़ विल बी -b बाई ए. अब चेक करके देख लो. अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 3 -1 -1/3 वुड बी
9 minus 3 minus 1 whole by 3 which is 5 by 3. करेक्ट. यहाँ से क्या आ रहा है देखो, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, माइनस बी बाई ए. तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ माइनस 5 विच इज़ 5 बाई ए वैल्यू इज 3. 5 by 3 हो गया. प्रोडक्ट ऑफ जीरो एज दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर 4 टर्म्स होती है ना. भले कोई टर्म जीरो भी होती है ना, जैसे मान लो अगर ये सिर्फ 3x क्यूब माइनस 4 होता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आइडियली इसके अंदर 4 टर्म होनी चाहिए. तो इसके अंदर जब 4 टर्म होनी चाहिए तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, सी बाई ए की जगह ऐसे ऑल्टरनेट चलता है ना, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड के साथ में साइन चेंज होता रहता है. तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं. सॉरी अबाउट दैट नॉइज, दैट्स माई डॉग. सो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास टोटल 4 टर्म होती है इंक्लूडिंग द कांस्टेंट टर्म, राइट. So over here it will be if you see product c by a. अब यहाँ पर क्योंकि 4 टर्म है तो ये माइनस सी बाई हो जाएगा. सो माइनस ऑफ माइनस 3 by 3 विच इज़ 3 by 3 इक्वल 1. क्या हमारे प्रोडक्ट इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम एग्जैक्ट सेम नंबर 1 मिल रहा है. लेट्स सी. 3 टाइम्स माइनस 1 टाइम्स माइनस 1 by 3. 3 to 3 कैंसल, माइनस 1 is 1. सेम आंसर. So it is verified. Please check if minus 1 and minus 1 by 3 are zeros or not. This is your homework. Please check it and you can answer yes in the comment section later on. Now, try to do questions from NCERT, second exercise. This is a quadratic polynomial. So there are 3 terms as you see. So sum of zeros will be minus b by a, which is 2 by 1. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन दिस केस वुड बी माइनस 8 एज इट इज रहेगा, है ना. माइनस सी बाई ए रहता है, सी बाई ए विच इज़ माइनस 8 by 1 एज इट इज़. ओवर हियर ऑल्सो माइनस बी बाई ए, क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए 4 by 4 विच इज़ 1. सी बाई ए 1 by 4. देयर इज नो चेंज इन सी एज ऑफ नाउ. व्हेन इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल देन देयर आर टोटल 4 टर्म्स. व्हेन देयर आर टोटल 4 टर्म्स देन द साइन चेंजेस. लुक एट दिस. Minus b by a would be 3 by 6 and product would be, oh sorry, see here, look at this. Now this here, these type of questions we see, I missed it, right? Similarly you can also miss the same thing. It should be written in a proper form. ये proper form में general form में लिखा हुआ नहीं है. 6x square minus 7x minus 3. It's a very common mistake which everybody makes. See, I also make the same mistake. I was not focusing much. So I made a mistake over here. Same thing can happen with you. Now over here if you write sum of zeros it would be 7 by 6. पहले हम क्या लिख रहे थे 3 by 6. थोड़ी गलती हो गई थी वहाँ पर. क्यों? क्योंकि 3 तो नेगेटिव 3 तो कांस्टेंट है ना. Now c by a minus 3 by 6 which is minus 1 by 2 if you simplify. You can do for others also in the same way. Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product. इसमें से मैं आपको कुछ करके बता देती हूँ. जैसे मैं आपको फर्स्ट वाला करके बता देती हूँ. सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन. नाउ वी नो एक्स स्क्वायर. सम ऑफ जीरो इफ इट इज पॉजिटिव यू चेंज इट. एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 1 एज इट इज. दिस इज योर इक्वेशन. फॉर दिस एक्स स्क्वायर इफ इट इज पॉजिटिव चेंज इट प्लस √2 प्लस 1 by 3 इक्वल्स टू 0. फॉर सम ऑफ जीरोज ओनली यू हैव टू चेंज, क्योंकि सम ऑफ जीरोज में जो सेकेंड टर्म होती है वो होती है माइनस बी बाई ए. अगर ऑलरेडी माइनस साइन है तो वो तो क्या होता है प्लस हो जाता है. अगर माइनस साइन नहीं है तो, जैसे यहाँ पर माइनस नहीं था, अगर आप वेट अ मिनट. तो देखो मैं यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये ऑलरेडी पॉजिटिव है. ये पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव तब होगा जब आपकी एक्चुअल पॉलिनोमियल में सेकेंड टर्म नेगेटिव होगी, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस की जगह माइनस √2 होना चाहिए, क्योंकि माइनस √2 माइनस लाइक माइनस ऑफ माइनस √2 विल मेक इट पॉजिटिव √2. तभी तो ये हमारा ये बन पाएगा सेम 1 by 3 इक्वल्स टू 0. अब आप इसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं. अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0. इफ़ यू टेक एलसीएम ओवर हियर इट वुड बी 3x स्क्वायर माइनस √3√2x plus 1 equals 0. Both are right.
3 root 2x. So try other questions from your exercise. Now we are done, and I hope you enjoyed this video. If you really like this video and if you want to make more such content, please subscribe and share with your friends. I will be sharing more parts of polynomial chapter. So this is the second part. Soon I will be making third part of it. Please share as much as possible with your friends. If you face any doubt, write it in the comment section so that I can take your doubts and make videos on it. So I'll see you in the next video. Bye bye. Have a good day.